Good morning, students. I hope you all are doing great in your studies and revise your previous chapter. Today, we are going to start with the chapter 3, which is more on HTML5. So, without wasting any further time, let's start the chapter. The name of our chapter is more on HTML5, and the topics which we will discuss and learn here are HTML, HTML tags and attributes, text properties, background properties, font properties, and margin properties. Now, Internet is a worldwide web of computer networks which has revolutionized the way people communicate, exchange views, search for information, shop and so on. Now one of the most popular services of internet is the World Wide Web यानी कि WWW. ये एक collection है of interconnected web pages that are identified by an address जिसे बोला जाता है Uniform Resource Locator which is URL. वेब पेज एक पेज होता है जो कंटेन करता है टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज एंड लिंक्स टू अदर वेब पेजेस. ये जो पेजेस है इनको एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखा जाता है विच इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML. Software called the web browser is used to view the HTML pages. Now what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो डिस्क्राइब करती है स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज. ये अलाउ करती है हमें to create web pages that contain paragraphs, headings, links and blog posts. Now जो output होता है हमारे HTML web pages का is same on any type of the computer and on any operating system that is Mac, Windows या फिर etc. HTML tags and attributes. So in our previous class you have learned various tags such as HTML head, title and body. Now you have also learned attributes of these tags. Let us revise some of those tags and learn about more HTML tags. तो फर्स्ट इज HTML टैग. ये जो HTML टैग होता है ये हमारे वेब ब्राउजर को बताता है दैट द टेक्स्ट कंटेन बिटवीन HTML एंड /HTML टैग इज अ वेब पेज एंड कैन बी व्यूड यूजिंग अ वेब ब्राउजर. फिर आता है हमारे पास हेड टैग. ये जो हेड टैग होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा हेडर एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट टाइटल, स्क्रिप्ट्स एंड स्टाइल डेफिनेशंस यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट. टाइटल टैग रिप्रेजेंट करता है टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इसको यूज किया जाता है इनसाइड द हेड टैग. ये अपीयर होता है ऑन द टाइटल बार ऑफ द वेब ब्राउजर विंडो एंड इफ यू डू नॉट वांट टू गिव टाइटल टू योर वेब पेज तो आप इसको स्किप कर सकते हो. बॉडी टैग डिफाइन करता है वो सेक्शन ऑफ आवर HTML डॉक्यूमेंट विच इज विजिबल ऑन द वेब ब्राउजर. ये कंटेन करता है ऑल द अदर टैग्स दैट डिफाइन द कंटेंट प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स जैसे इमेजेस, लिस्ट, टेबल्स, टेक्स्ट एंड लिंक्स टू मूव between the web pages. Now HTML5 provide करता है different types of tags. For example, tag to create different types of headings, to create paragraphs, to insert line break, to add horizontal line, etc. Let us learn about some of them in detail. So सबसे पहले आता है HN tag. Every chapter in a book has various headings and subheadings. Now इनको बोला जाता है levels of heading. Heading tags का हम यहाँ पे use करते हैं to give similar effect to your web pages. These are container tags जो start होते हैं starting tag से and they end with the ending tag. HTML जो है वो define करता है up to 6 levels of heading from H1 to H6. H1 जो होती है वो हमारा first level of heading होता है and H6 हमारा last level of heading या फिर subheading होता है. Let's create a web page using heading tags. तो यहाँ पे हमने हेडिंग लेवल 1, 2, 3, 4, 5 की हेडिंग्स कराई हैं यूजिंग H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 एंड दिस इज हाउ द रिजल्ट विल लुक लाइक. जो हमारी H1 होती है वो लार्जेस्ट होती है एंड H6 इज द लोएस्ट. P टैग डिफाइन करता है स्टार्ट एंड एंड ऑफ द पैराग्राफ इन अ टेक्स्ट एंड ये बोथ कंटेनर भी है एज वेल एज एम्प्टी टैग भी है बिकॉज व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ तो आप स्टार्ट करोगे यूजिंग द P टैग विदाउट एनी क्लोजिंग previous paragraph tag. Now, in order to avoid confusion in the advice to use these tags as a container tag starting with the P tag and आप end करोगे उसको with the /P tag. Paragraph tag जो है वो automatically insert कर लेता है blank line between two paragraphs. Align attribute. Paragraph can be aligned using the align attribute and various values of the align attribute are given in the table. So, left align ये हमारे text को align कर देता है towards left. एंड फॉर एग्जाम्पल P अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट तो हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या होगा लेफ्ट अलाइन हो जाएगा. नाउ राइट ये हमारे टेक्स्ट को राइट अलाइन करता है. सिमिलरली P अलाइन इक्वल्स टू राइट. सेंटर हमारे टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करता है एंड जस्टिफाई क्या करता है स्ट्रेच कर देता है लाइंस को सो दैट वो दोनों साइड इक्वल आए. नाउ BR टैग का हम यूज करते हैं व्हेनेवर वी वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन बट डू नॉट वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ.
न्यू पैराग्राफ हमें नहीं स्टार्ट करना बट न्यू लाइन स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए हम br टैग का यूज करते हैं. दिस टैग इज नोन एज लाइन ब्रेक. ये मेनली यूज किया जाता है whenever you want to your text to come to the next line without leaving a blank line in between. Now ये जो टैग है ये फोर्स करता है एक लाइन ब्रेक को. whenever you will place it, it is an empty tag. लाइक हमने यहाँ पे br टैग का यूज किया है टू सेपरेट दीज टू पैराग्राफ, एंड यू कैन सी आफ्टर ब्रेक यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो गई एंड हम सेकेंड लाइन से स्टार्ट कर दिया हमने सेकेंड पैराग्राफ. एचआर टैग इसका हम यूज करते हैं whenever we want to divide our web page into different sections. इसको हम यूज करते हैं जब भी हमें ड्रॉ करना होता है एक लाइन बिटवीन टू पैराग्राफ्स. ये एक एम्प्टी टैग है एंड डज नॉट नीड एनी एंड टैग. और ये हमें एक हॉरिजॉन्टल रूलर यानी कि लाइन प्रोवाइड करता है ऑन द पेज, एंड देन जो टेक्स्ट एलिमेंट है विल बी शोन इन द न्यू लाइन आफ्टर द रूलर. तो फॉर दिस हमने सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट टाइप दिया एचटीएमएल हेड टाइटल हेड क्लोज. बॉडी में हमने लिखा अपना फर्स्ट पैराग्राफ. देन एचआर साइज इज 10 विद 80. देन हमने सेकंड पैराग्राफ लिखा, एचआर साइज और विड्थ दे दिया, कलर दे दिया इन साइज, देन कलर अगेन. तो दिस इज हाउ ये जो दो लाइंस हैं यहाँ पे ये इस तरीके से बीच में क्रिएट हो जाएंगी ऑफ द डिफरेंट पैराग्राफ. सब टैग, ये जो सब टैग होता है ये इसका हम यूज करते हैं टू टर्न द एनक्लोज टेक्स्ट इनटू अ सुपरस्क्रिप्ट. फॉर एग्जांपल E is equals to mc square is coded as E is equals to mc. फिर हमने यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट के लिए टैग लगा दिया 2. तो हमारा जो 2 है वो थोड़ा लाइन से ऊपर की साइड है. नाउ सब टैग, ये जो सब टैग होता है इसको हम यूज करते हैं टू टर्न द एनक्लोज टैग इनटू द सबस्क्रिप्ट फॉर्म यानी कि लोअर देन द लाइन. तो H2O में जो 2 है हमने उससे पहले यहाँ पे सब टैग का यूज किया. टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट. जो प्रॉपर्टीज होती हैं एंड देयर वैल्यूज यूज्ड इन स्टाइल एट्रीब्यूट आर गिवन बिलो. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कलर. नेम ऑफ द कलर ये स्पेसिफाई करता है टेक्स्ट कलर टू बी यूज्ड ऑन दी वेब पेज. देन वी हैव टेक्स्ट अलाइन. लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई ये स्पेसिफाई करता है हमारे टेक्स्ट का अलाइनमेंट, दैट मीन्स पोजिशनिंग. टेक्स्ट इंडेंट, यहाँ पे लेंथ इन द पिक्सल्स या फिर परसेंटेज कैलकुलेट होती है, ये स्पेसिफाई करता है इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन ओवरलाइन या फिर स्ट्राइक थ्रू, ये स्पेसिफाई करते हैं हमारे टेक्स्ट इफेक्ट्स जैसे अंडरलाइन ओवरलाइन या फिर स्ट्राइक थ्रू. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे हम कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस एंड मेनी मोर फीचर्स यूज करते हैं और ये स्पेसिफाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ टेक्स्ट इनटू अपर केस, लोअर केस या फिर टाइटल केस. नाउ क्रिएट एन HTML5 डॉक्यूमेंट वेब पेज यूजिंग दी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज. तो हमने यहाँ पे क्या किया, टाइटल दे दिया टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, हमने यहाँ पे हेडिंग 1 दे दी. देन डेकोरेशन में हमने अंडरलाइन किया कलर रेड. नाउ स्टाइल फॉन्ट फैमिली हमने दे दिया टाइम्स न्यू रोमन. ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस दे दी हमने, पूरा पैराग्राफ आ गया. देन वी हैव गिवन द साइज विद कलर. देन नेक्स्ट के लिए हमने फॉन्ट फैमिली दे दी, ट्रांसफॉर्मेशन लोअर केस, एंड दिस इज हाउ इट विल प्रोवाइड अस द रिजल्ट. Is the activity which property is used to align the text and what write its different values. So it is alignment property. Align property. And values इसमें हमारे पास होती हैं right, left, center and justify. Then we have background properties. So background properties are used to make changes in the background of a web page, and various background properties and their values are given in the table. तो फर्स्ट आता है बैकग्राउंड कलर. यहाँ पे हम नेम ऑफ द कलर देते हैं वैल्यू में एंड ये स्पेसिफाई करता है बैकग्राउंड कलर टू बी यूज्ड ऑन दी वेब पेज. देन बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे हम यूआरएल यानी कि इमेज का अपना जो भी लोकेशन है वो जस्टिफाई करते हैं और ये स्पेसिफाई करता है इमेज को एज अ बैकग्राउंड ऑन दी वेब पेज. बैकग्राउंड रिपीट एक्स वाई वेयर एज एक्स हॉरिजॉन्टल एक्स वर्टिकल नो रिपीट, ये स्पेसिफाई करता है रिपीटिशन ऑफ एन इमेज ऑन दी वेब पेज. नाउ क्रिएट एन HTML5 वेब पेज यूजिंग द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज. तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड जस्टिफाई कर दिया बाय गिविंग द URL, repeat y, align center. This is how our image will look like. Activity, write HTML code to create the following chemical formulas. So for it will be T1 sulfuric acid के लिए will do here S sub O4
Similarly, you will write the code for this chemical equation. Now, font properties, by using CSS हम change कर सकते हैं font face, color, style and size. CSS provide करता है हमें various properties जैसे font family to change the font face, font color to change the color of the font style to make the text italic, and font weight to make the text bold, text decoration to make the text underline या फिर overline, and font size to change the size of the font. तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो होती है, यहाँ पे हमारा नेम ऑफ द फॉन्ट यहाँ पे वैल्यू होती है जो स्पेसिफाई करती है कि हमें कौन सा फॉन्ट यूज करना है इन आवर टेक्स्ट. फॉन्ट साइज वैल्यू इज गिवन इन पिक्सेल्स. डिफॉल्ट फॉन्ट साइज फॉर द टेक्स्ट इज 16 px एंड स्पेसिफाइज द फॉन्ट साइज यूज्ड ऑन द वेब पेज. फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल या फिर इटैलिक, ये स्पेसिफाई करता है स्टाइल ऑफ आवर फॉन्ट. नाउ क्रिएट एन HTML5 वेब पेज बाय यूजिंग द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे हमने हेडिंग 1 दे दी, कलर ब्लू, फॉन्ट फैमिली, साइज दे दिया हमने, अलाइनमेंट जस्टिफाई कर दी. सिमिलरली फॉर दी हेडिंग 2 एंड लाइक दिस, यहाँ पे भी हमने फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज जस्टिफाई कर दिया. हैबिट, ये हमारा पूरा पैराग्राफ आ गया. हमने यहाँ पे ब्रेक, लाइन ब्रेक का यूज किया है. देन बी करंटली एनिमल्स क्लासिफाइड इनटू हैबिटेट्स, ये हमारा दूसरा आ गया. ब्रेक प्रोवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे. BRB टेरेस्ट्रियल एनिमल्स /P, हमने उनको जस्टिफाई किया. देन एक्वेटिक एनिमल्स, एरियल एनिमल्स एंड एम्फीबियन एनिमल्स. तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. यहाँ पे हमारी ग्रीन कलर से हेडिंग आ गई सेंटर में. देन हमने यहाँ पे एक लाइन ऐड कराई थी, वो लाइन आ गई. देन हमने यहाँ पे लाइन ब्रेक ऐड कराया था, वो आ गया. यहाँ पे हमने इनको जस्टिफाई किया. These are our subheadings and this is the text about them. मार्जिन प्रॉपर्टीज, मार्जिन एक स्पेस होता है जो अपीयर होता है अराउंड एन एलिमेंट. मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है टू सेट मार्जिन फॉर एनी वेब पेज एलिमेंट. जो 4 साइड्स होती है यूज्ड विद द मार्जिन प्रॉपर्टी आर लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम. वैल्यूज ऑफ द साइड्स कैन बी मेजर्ड इन पिक्सेल्स, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, 30 पिक्सल एटसेट्रा, और एज अ परसेंटेज ऑफ द विंडो. रीड HTML5 वेब पेज यूजिंग मार्जिन प्रॉपर्टीज. तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले HTML हमने टाइप डिक्लेयर कर दिया HTML, देन हेड टाइटल में आ गया चेंजिंग मार्जिन, स्टाइल में फॉन्ट फैमिली एंड अलाइनमेंट हमने प्रोवाइड करा दी. टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन एंड ग्रीन कलर. मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन हमने यहाँ पे जस्टिफाई कराई 40 पिक्सल्स. देन हमारा फॉन्ट जस्टिफाई किया हमने, अपर केस में हमने एक पैराग्राफ लिखवाया, उसका साइज, विड्थ, कलर दे दिया जस्टिफाई करके. एंड so you can see the space around the area जिसको हमने एज अ मार्जिन यहाँ पे प्रोवाइड किया है in our document. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. Dash tag is used to insert a line break, BR tag. Dash tags are used to add headings in a web page, heading. Dash tag contains the content of a web page, body. And dash property is used to underline the text on web page, text decoration. Let's do true false. Heading tag has 5 levels, false. The color of the text cannot be changed in a web page, false. T tag has no attributes to align text, false. BR tag is used to draw lines between the paragraph, false. The background color of the web page can be defined only once, false. Let's do fill in the blanks. So our very first question is, the dash is the space that appears around an element, margin. HTML is a dash language, markup. The dash tag is used to write the formulas a plus b raised to the power 2 up. The dash tag is used to define section of a text as a paragraph tag, and dash tag is used to write chemical formula of water. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.